Students, we are in the next topic of class 8, that is chapter number 10, parallel lines. You must be thinking that I had taught you chapter 1 and chapter 2, then left chapter 3. Next we have taught direct variation, inverse variation. Again left some chapter, go for profit, loss and discount. And then we came to the chapter number 7, algebraic identities. We are living polynomials, etc. Actually I am dealing the syllabus as per previous years MP zone bifurcation of the syllabus up to half yearly. Up to half yearly, the syllabus is divided into such a way that we have to study about squares and square root, cubes and cube roots, variation, profit loss, algebraic identities, parallel lines, then introduction of graph and mensuration. I think we are, as far as today, I am not concerned with the syllabus. I am taking this class and doing this study teaching learning as per previous year syllabus. Okay, so if there is some deviation about that, I will do the next one also. So first you just think about, as I focused on this particular line, parallel lines, its introduction. You see one ladder, railway track, books, tabletop. In all the cases you will find the edges are, opposite edges are of equal distances. रेलवे ट्रैक, दो जो ट्रैक होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है. बुक्स एज हमेशा इक्वल होता है. टेबल टॉप एज हमेशा इक्वल होता है. तो व्हाट इज कॉमन इन ऑल दीज? Simply you say that we will find one pair of opposite edges in the tabletop. I think in both pairs are parallel. Railway track are parallel. The support of ladder is also parallel. And further, we are going to find out some properties of parallel lines. For that, we know some terms about the, if two parallel lines intersected by a transversal, there are some terms you will find 1, 2, 3, 4, 5. One is a line transversal, pair of corresponding angles, pair of alternate interior angles, pair of exterior angles, as well as consecutive angles. Consecutive angles I will tell you after some times. You just look the figure. I am giving you some glimpses of the book. And finally, you will see here, if a transversal cuts a pair of the lines in such a way that the angles of any pair of corresponding angles are equal, or the angles of any pair of alternate interior angles are equal, or exterior angles are equal, the angles of any pair of interior angles on the same side of the transversal are supplementary, then lines are parallel. This is what? This is converse. Before that, if two parallel lines are intersected by a transversal, then each pair of corresponding angles are equal. Each pair of alternate interior angles or alternate exterior angles are equal. Interior angles on the same side of the transversal are supplementary. This is, and these two are converse to each other. And we have to study all these things. And based on these concepts, we have some problem to discuss. This is exercises, example, sorry. There is another example you will see, that in the figure AB is parallel to CD is parallel to EF and A is also parallel to BF. Find angle X, Y, Z, P, Q and W. The process I will give you. Then start worksheet 1.
and there are one in this figure. L, M, N are parallel lines. They are intersected by a transversal P. Angle 1 is given to be 110 degree. X, Y, Z and W are marked as an angle. Certainly you have to find the value of these angles. Here in this figure, a quadrilateral ABCD is given such that AB is parallel to AD is parallel to BC. You have to prove it. Given that angle 1 is equal to angle 2 and they are equal to 90 degree each. Then third question, you have to draw a line segment AB of 6 cm, mark 2 points P and Q on it, draw lines perpendicular to AB through P and Q. And what can you say about PR and QS? Are they parallel? Justify your answers. The next question 4 is, there is again L is parallel to M is parallel to N. स्मॉल लेटर से भी हम लाइन को डिनोट करते हैं. These three lines L, M, N are parallel, and the figure is as usual that at point A there is one angle is 50 degree, and at point B above it marked as X, below it marks as Y, and then 30 degree. You are required to find the value of X and Y. This is question number, and there are many. I will give you one by one. Some questions I am going to solve you and some are left for you. Distance between two parallel lines. Distance between any two parallel lines remains constant. हमेशा के हमेशा वो एक दूसरे कहीं से भी ले लो, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर लिया जाता है. तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, एनी पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस ऑलवेज पैरेलल. देन कंसेप्ट लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन. लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन. मान लो एक लाइन दिया हुआ है सपोज, एंड इस लाइन के पैरेलल ये दोनों लाइन हैं, तो क्या कंसेप्ट होगा? कंसेप्ट होगा कि लाइंस which are parallel to a given line in a plane, एक ही प्लेन पर, मतलब एक पेज पे, अगर वो पैरेलल हैं तो they are parallel to each other also. Suppose line N and M are parallel to L, then M and N also parallel. फिर इसी तरह हम लोग वर्कशीट 2 में पहुंचेंगे. फिर जो लास्ट पार्ट होगा ये ए डिवीजन ऑफ ए लाइन सेगमेंट इनटू इक्वल पार्ट्स, एंड दिस इज कंस्ट्रक्शन पार्ट, geometrical construction. Here we need geometrical box. This part is going to be, so I will give you the idea how to construct, and you can construct this way or that way. These are the different. Is it clear? So you can. There are two methods. One method is applicable, and both method, the concept of both method, here it is not defined. It is in the, it will be you find in class 10 syllabus, not in class 8 syllabus. So, and on the basis of the division of the line segment, geometrically there is the third worksheet, and after this worksheet it contains brain teasers and some subject enrichment, some HOTS problem. You will find the thing. So can I start this topic? This is the subject enrichment question, है ना? There is some HOTS question, garam question, है ना? Higher order thinking skills. Okay? So बारी बारी से हम इसे फिर से स्टार्ट करते हैं. ये हमने एक ग्लिम्स दिया आपको पैरेलल लाइंस का, और एक चीज और, दिस वेरी चैप्टर इज अगेन you are going to read in class 9 again, and this is in the 6th chapter, lines and angles. It is, and many more based on this very particular concept. Okay, so dear students, here is the chapter parallel lines, chapter number 10. Altogether it is 6th chapter. We are studying 6th chapter. So between up to 10 we had left 4. Okay, so as you know, रेलवे ट्रैक, बहुत लोग आप में से रेलवे जो लाइन है यहाँ भी है, नवानगर जाते समय जो बीच में पड़ता है,
दोनों ट्रैक क्या है, एक दूसरे के पैरेलल। एक दूसरे के पैरेलल मीन्स कहीं से भी इनका डिस्टेंस मेंटेन कर लो, चेक कर लो, ये डिस्टेंस होता है हमेशा परपेंडिकुलर, कहीं भी एनीवेयर यू विल फाइंड इफ इट इज 1 मीटर देन इट इज ऑल्सो 1 मीटर। ओके, सो दिस ऑल्सो आपके घर में टेबल टॉप होगा, टेबल होगा ही होगा, या आप घर के दीवार को देख लो। जनरली जब छत के जो एजेस को देखो, अपने फ्लोर के एजेस को देखो, अपोजिट जो हैं वो पैरेलल माने जाते हैं। ये वाली और ये वाली जो एज है सीलिंग का, ये पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, ठीक है ना। सो घरों में जो गांव वगैरह में जो लोग छतों पे चढ़ने के लिए जो सीढ़ियाँ रखते हैं लकड़ी का या लोहे का, आप इसके पास इलेक्ट्रीशियन के पास देखोगे बड़े बड़े सीढ़ियाँ होती हैं, तो ये जो दोनों सपोर्ट होता है, ये तो बीच में चढ़ने का होता है ना, इसको रक्स कहते हैं। ये जो सपोर्ट है ये भी पैरेलल होता है जनरली। कुछ सीढ़ियाँ ऐसी भी होती हैं, है ना, वो छोटे सपोर्ट के लिए जब दोनों तरफ सपोर्ट किया जाता है तब इधर भी लगाया जाता है, ये ऊपर में होता है ऐसे, तो वो थोड़ा सा टिल्ट होता है। बट जनरली जो सीढ़ी होती है वो लंबे जाते हैं, खासकर फायर सिस्टम में जो लोग रखते हैं, है ना, फायर सिस्टम वाले जो अपने व्हीकल में रखते हैं ना, वो ऐसी सीढ़ी होती है, पैरेलल होता है। बुक्स का टॉप देख लो, ये बुक है मान लो अगर, तो ये और ये वाली एज, ये और ये वाली एज क्या होगा, पैरेलल है। सो इफ टू लाइन्स इन ए प्लेन, इफ टू लाइन्स इन ए प्लेन, प्लेन में होना जरूरी है, इन ए प्लेन, ये सपोज कर लो ये हमारा प्लेन है, डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, डू नॉट intersect each other, then they are called parallel lines। देखो प्लेन में दो ही तरह के लाइंस होते हैं, या तो दोनों पैरेलल होंगे, कहीं भी आगे इधर बढ़ाओ चाहे इधर बढ़ाओ दोनों नहीं मिलेंगे, या तो दोनों कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे, थोड़ा दूर पे मिलके जाके या नज़दीक में ही, लेकिन अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस हर जगह, जैसे यहाँ देखो डिस्टेंस इतना है तो यहाँ कम है, तो ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। बस माइंड ये करना है कि ये जो केसेस हैं वी आर डिस्कसिंग ऑन ए सिंगल प्लेन, एक प्लेन पे। मतलब ये नहीं कि मान लो मैं फर्श पे बैठा हूँ, उस पर एक लाइन खींच दिया और बगल के जो दीवार खड़ा है वो अलग प्लेन हुआ, उस पर लाइन खींच दिया और कह दो कि सर इस पे जो दो लाइन है वो पैरेलल भी नहीं है और इंटरसेक्ट भी नहीं करता। दीज आर नॉट द केस, दीज आर द केस वी आर गोइंग टू स्टडी इन, बट इन class 12. At this time it is in the class 12. Maybe after 1 or 2 years syllabus change, you will find it in earlier. So but at this time that very particular case के lines neither parallel nor intersecting, certainly they are not going to lie on the same plane. But if they are on the same plane, either you have to parallel or intersecting. So what do you mean by parallel? If the two lines when extended on both the sides never meet each other, एक दूसरे को कभी नहीं मिले, then they are called parallel lines। ठीक है, अब इसके बाद पैरेलल लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है। उस प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले हम लोग कुछ चीज़ों के बारे में जान लेंगे, कुछ इसके टर्म्स यूज होंगे उसको जान लेंगे, ठीक है ना। क्या है वो टर्म्स? तो वो टर्म्स है कि ये दो लाइन है, अभी मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि दे आर पैरेलल, बट दो लाइन है, एंड दीज टू लाइन आर इंटरसेक्टेड बाय वन मोर लाइन। तो you will find that at this point we get 4 angles, 1 2 3 and 4, and again at this very point you get 4 more angles, let it be 5 6 7 8। तो यहाँ पर कुछ टर्म्स डिफाइन होते हैं। पहले हम we are discussing about these two very lines. We don't know whether they are intersecting or parallel, but what we find, these two lines are intersected by another line, third line. Let it be, this is a line. You will find there are 4 angles on this side and 4 angles on this side, 1 2 3 4 5 6 7 8.
अगेन यू सी आउट ऑफ दिस, इस लाइन के ऊपर दो एंगल हैं और इस लाइन के भी ऊपर दो एंगल हैं. तो फर्स्ट वी कंसिडर अबाउट on this side and above the lines 1 and 5. 1 and 5 ये क्या है? ये दोनों इस ट्रांसवर्सल के एक तरफ, लेकिन दोनों लाइन के ऊपर की ओर है. उसी तरह दोनों लाइन के नीचे की ओर कौन सा एंगल है? तो एंगल 2 एंड एंगल 6. ठीक है. उसी तरह इधर देखो तो ऊपर की ओर 4 and 8 है. पहले लाइन के ऊपर 4, दूसरे लाइन के ऊपर 8, 4 एंड एंगल 8. और नीचे की ओर 3 and 7, 3 and 7. These pairs, they are in pair. These pair, 1 pair, 2 pair, 3 pair and 4 pair, they are called pair of corresponding angle. Pair of corresponding, थोड़ा सा दूर करके लिखते हैं, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स. करस्पॉन्डिंग एंगल्स मीन्स ट्रांसवर्सल के एक तरफ और लाइंस के ऊपर, दोनों या तो ऊपर, दोनों या तो नीचे, लेकिन एक तरफ. फिर अब हमने तो कहा कि दोनों या तो ऊपर और एक तरफ. अब देखो ये 4 एंगल जो हैं वो इंटीरियर एंगल हैं. ये चारों क्या है? इंटीरियर, अंदर, मतलब दोनों लाइन के अंदर के. तो ये जो 2 है और जो 5 है, ठीक है ना, जो 2 और 5 है वो एक तरफ के दो इंटीरियर एंगल हैं, और ये जो 3 और 8 है वो एक तरफ का है. उसी तरह 2 and 8, 2 and 8, these two angles are interior but on the alternate side of the transversal, so they are called alternate interior angle, 2 and 8. And similarly 3 and 5, 3 and 5, these two pairs are alternate इंटीरियर एंगल्स. अब चूंकि अंदर में है, अल्टरनेट है, तो इसी तरह ये जो 4 and 6 है, 4 and 6, देखो ये लाइन के ट्रांसवर्सल के दोनों दो तरफ हैं और लाइंस के बाहर हैं. ये दोनों लाइंस के बाहर में हैं. 4 and 6, 1 and then 7, they are called what? They are called same thing, अल्टरनेट तो हैं ही, अल्टरनेट तो हैं ही, बट एक्सटीरियर है, ट्रांसवर्सल से, दोनों लाइन से बाहर की ओर एक्सटीरियर एंगल्स. आई एम जस्ट यूजिंग द टर्म्स, आई एम नॉट फाइंडिंग द रिलेशन बिटवीन देम, जस्ट नेमिंग देम कि व्हाट टाइप ऑफ द एंगल्स दे आर. एंड फाइनली हमने अल्टरनेट ले लिया तो ऑन द सेम साइड भी तो होना चाहिए. एंगल 2 एंड एंगल 5, ये एंड ये, on the same side of the transversal and interior, as well as 3 and 8, 3 and 8. इसको कहते हैं इंटीरियर एंगल्स. इंटीरियर एंगल्स on the same side of the ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल एक अलग टाइप का लाइन है जो गिवन लाइंस को इंटरसेक्ट करे, दोनों तीनों जितने भी हैं. अच्छा, इसके बेटा क्लास 9 में जाओगे तो और भी नाम पढ़ोगे, यहाँ भी मिलेगा आपको. पहला नाम है को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स. दूसरा नाम है कंजिक्यूटिव एंगल्स, इंटीरियर लगाएंगे, कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स. और एक और नाम है एलाइड एंगल, एलाइड, ALLID, एलाइड एंगल्स. ये इस तरह से हमने पहला पेयर क्या पढ़ा. 4 पेयर में क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स. 2 पेयर में क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. उसी तरह 2 पेयर में क्या है? को इंटीरियर एंगल्स, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स या इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल और एलाइड एंगल्स.
इतने चीज़ें हमें पढ़नी हैं, मतलब इसके बारे में जानना है। और जैसे इसके जानेंगे तो फिर इनको हम पैरेलल लाइंस के कंसेप्ट में जानेंगे कि व्हाट आर दे रिलेटेड टू ईच अदर, व्हाट सेंस, in what sense they are related to each other. Is that clear? I think you must be clear. Now you see there is a pause and in between I have drawn the figure. Now again the same figure, but you will find that these here line L and M supposed to be parallel. मैंने पैरेलल ड्रॉ किया या नहीं, लेकिन हम यहाँ मान के चलें दे आर पैरेलल, दे आर पैरेलल। हियर गिवन दैट, यहाँ गिवन है लाइन L इज पैरेलल टू M, दिस इज द सिंबल ऑफ इज पैरेलल टू। ये क्या है? H पैरेलल टू। स्मॉल लेटर से हम लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। आइदर यू राइट डाउन AB, यहाँ पर A दे दिया, B दे दिया, C दे दिया, D दे दिया। तो फिलहाल हमने लाइंस को लिया है, और जैसे पीछे हमने रिप्रेजेंट किया था एंगल्स का नंबरिंग, नाम्स, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर आपको दिस इज वन मोर थिंग, एक्सियम। एक्सियम मीन्स ये एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जा रहा है जिसका कोई प्रूफ नहीं है, बट इट इज ट्रू। और आज से नहीं, 5500 साल पहले जब से इसका एग्जिस्टेंस हुआ, तब से डिफरेंट टाइम्स ऑफ डिफरेंट जोन में जब देखा गया कि वेन एवर वी ड्रॉ अ लाइन इन ए पैरेलल लाइन्स इन ए प्लेन एंड ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट, सो द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज विल हैपन ऑलवेज। सो फर्स्ट वन, ओनली वन प्रॉपर्टी, एक्सियम जो मैं कह रहा हूँ पहला, कि ईच पेयर ऑफ corresponding angles are equal। यही वाली कंसेप्ट जो है उसको मान लिया गया, और है भी सही, इसका कोई प्रूफ अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। सो ऐसे चीज़ों को हम एक्सियम कहते हैं, ठीक है ना। ईच पेयर, अब बताओ इसमें कौन कौन सा पेयर है करस्पॉन्डिंग एंगल्स का? हमने किस किस को बताया था कि ये और ये पेयर है? तो 1 and 5 पेयर थे, 1 and 5, तो these two are equal। 2 and 6 भी पेयर था, 2 and 6 are equal, ठीक है। फिर कौन सा पेयर इक्वल था? फिगर को देखते हुए बोलें, 4 and 8, एंगल 4 और 8 ये करस्पॉन्डिंग है, ये दोनों इक्वल हो गए। 3 and 7, these four pairs of corresponding angles are equal, and with the help of we find another properties, इससे हम हेल्प करके उन प्रॉपर्टीज को प्रूव करते हैं। वो क्या है? each pair of, दूसरा, each pair of alternate interior angles are equal। इंटीरियर हो चाहे एक्सटीरियर हो, आर इक्वल। मतलब कौन से पेयर थे इंटीरियर एंगल? तो 2 and 8, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। 3 and 5 ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ये कौन सा है भाई? तो ये है अल्टरनेट, छोटा लिख दिया अल्टरनेट का, इंटीरियर एंड एंगल्स। और दूसरा एक्सटीरियर वाला क्या है? तो 4 and 6, और फिर 1 and 7, ये दोनों भी इक्वल हैं। ये हो गया अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक ना। इसको हम इसके हेल्प से प्रूफ करेंगे। प्रूफ इज नॉट रिक्वायर्ड इन दिस क्लास, यही चीज़ क्लास 9th में आपको प्रूफ करना होगा, ठीक है ना। यहाँ पर केवल इसके कंसेप्ट से आपको प्रॉब्लम्स बनाने हैं। एंड थर्ड प्रॉपर्टी है, व्हेन लाइंस आर पैरेलल देयर आर 3 प्रॉपर्टीज। वन इज ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल, इंटीरियर में और एक्सटीरियर से। एंड थर्ड जो है, जो को इंटीरियर एंगल्स था 2 and 5,
2 and 5, इन दोनों का सम 180 होगा. दे आर सप्लीमेंट्री. 3 and 8 आर सप्लीमेंट्री. अब इस तरह से आप कहोगे कि सर को एक्सटीरियर भी तो 180 होगा, लेकिन उस पर अभी ज़्यादा एक्चुअली एक्सटीरियर पर भी प्रॉपर्टीज़ नहीं हो तो हम लोग बना लिए हैं बाद में. शुरुआत में इंटीरियर एंगल का ही कंसेप्ट है. सो इसको क्या कहेंगे? कंसेक्यूटिव एंगल्स या को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री में समझते हो ना, दोनों का सम क्या होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए. तो ये प्रॉपर्टीज हुई व्हेन लाइंस आर गिवन टू बी पैरेलल. और ठीक इसका उल्टा कि जब कभी भी आपको इधर से इफ एनी पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आइदर 1 इक्वल टू 5 और 2 इक्वल टू 6 और 4 इक्वल टू 8 और 3 इक्वल टू 7 are given to be equal, we just say that line L and M must be parallel, converse of this one. If any one pair of alternate interior angles are equal, again we say that line L and M are parallel. If sum of co-interior angles are supplement 180 degree or the co-interior angles are supplementary, again we say that line L and M must be parallel. This what I show you in the first part of शुरू के इसमें ये हमने आपको दिखाया था कि if two lines of parallel cut by a transversal, then pair of corresponding angles are equal, pair of alternate interior as well as exterior angles are equal, interior angles on the same side of transversal are supplementary. ये पहला पार्ट. और उसका कन्वर्स हुआ ये कि इफ ए ट्रांसवर्सल कट्स अ पेयर ऑफ लाइंस, हियर लाइंस आर नॉट गिवन टू बी पैरेलल इन सच वे दैट द एंगल्स ऑफ एनी पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. हमने अभी बताया 1 इक्वल टू 5 हो, चाहे 4 इक्वल टू 8 हो, चाहे 2 इक्वल टू 6 हो, चाहे 3 इक्वल टू 7, इनमें से कोई एक हो, लाइंस मस्ट बी पैरेलल. या द एंगल्स ऑफ एनी पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एनी पेयर आइदर 2 इक्वल टू 8 हो, 2 इक्वल टू 8 हो तो मिट गया यहाँ पर, और 3 इक्वल टू 5 हो, इनमें से ये हो चाहे ये हो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देन अगेन वी से दैट लाइंस आर पैरेलल. या एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 हो, एक्सटीरियर वाली, एंगल 1 इक्वल टू 7 हो, तब भी हम कहेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल से कि लाइंस आर पैरेलल. तीसरा पार्ट, if the angles of any pair of interior angles on the same side of the transversal are supplementary. This part, if angle 2 plus 5 180 or 3 plus 8 180, again we say that lines L and M are parallel. So this is the first part of the concept. Before going to the worksheet 1, we have to study about this very part. So next I am going to do some questions. You will find here in worksheet 1 you will find 9 questions. Worksheet 1. I am taking very first question of the exercise. I have some torn book. Here one question. 3 lines are parallel, L, M, N. Given that L is parallel to M is parallel to N, and P is any transversal, angle 1 is marked as 110 degree, then it is marked X, here Y, here Z, here W, you are required to find this value of X, Y and Z. देखो बेटा, whether you know about the concept of linear pair or not, I don't know. Lines के एक ही तरफ के मतलब sum of these two angles is 180 degree. This is called, if a line and it is intersected by another line, the sum of the two angles on the same side is always 180 degree. It is called linear pair of angles.
But here I am going to do the questions with the help of you can say whatever you have studied in this very particular topic. सबसे पहले आप जान लीजिए L is a line, so therefore 110 और X ये 180 डिग्री होता है. इसको कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स. तो यहाँ से तो X निकल आएगा 180 माइनस 110 इक्वल टू 70 डिग्री. बट can I say that since L is parallel to M, L is parallel to M, तो what happens? One more thing, vertically opposite angle भी होता है, पढ़े होगे है ना. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पढ़े होगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल पढ़े होगे, किसी न किसी क्लास में पढ़े होगे जरूर. ठीक है ना. हाँ, लीनियर पेयर पढ़ा हुआ है आपने पहले से, वर्टिकली अपोजिट एंगल भी पढ़ा हुआ आपने पहले से. सो हम x की वैल्यू 70 निकाल लिया. लीनियर पेयर क्या होता है आप अभी फिर से रिकॉल कर लो. एक लाइन, उस पर अगर कोई एक रे ऐसे हम ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों एंगल का सम 180 होगा. वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ सिंगल पॉइंट, एक ही पॉइंट पर तो कट ही करते हैं, ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट कहलाएंगे एंड दे आर इक्वल. उसी तरह ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट कहलाएंगे एंड दे आर इक्वल. सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट 100x इज इक्वल टू व्हाट एंगल इज दिस. अगर इसको नाम दे दूं मैं 2, तो एंगल x इज इक्वल टू एंगल 2 एंड विच इज इक्वल टू 70 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल से. तो अब ये 2 और y इक्वल हो जाएगा कि नहीं? L के पैरेलल M होने से एंगल 2 इक्वल टू y. क्यों? ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो इनको इक्वल होना चाहिए. तो y की वैल्यू क्या हो गई? 70 डिग्री. अब देखिए M और N पैरेलल है, M और N पैरेलल है, तो y और z में क्या रिलेशन हो गया? y मस्ट बी इक्वल टू z. क्यों? They are alternate interior angles. तो यहाँ पर Z भी 70 डिग्री हो गया. अब देखिए आपने Z भी निकाल लिया, तो Z प्लस, अब ये लाइन है और ये रे है, तो Z प्लस W क्या होना चाहिए? 180 डिग्री. क्यों? वही लीनियर पेयर. Z आपने निकाला 70, तो W क्या निकल आएगा सर? दैट इज 110. आप कह सकते हो कि सर ये दोनों लाइन तो आपस में पैरेलल हो गए, तो 1 और W अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो यहां से भी आप W इक्वल टू 110 कह सकते हो. नथिंग रॉन्ग विथ दिस. ठीक है ना. और X और Z, L इज पैरेलल टू N, तो X एंड Z आर करस्पॉन्डिंग एंगल. तो X जैसे ही 70 निकाला तो वहां से भी हम Z को 70 डिग्री कह सकते हैं. तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ वेरी फर्स्ट क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज वर्कशीट, सॉरी इन योर केस वर्कशीट 1, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है ना. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2. जुगाड़ सिस्टम है ये. मालूम है क्या है ये? एक प्लास्टिक का पैक है, यू विल सी हियर देयर आर, और इसके बीच में हमने पीछे एक वाइट पेपर डाल दिया है, और वाइट बोर्ड का एक मार्कर से लिखता हूँ. पेज ख़त्म हो गया बेटा कॉपी का, और मैं देख रहा हूँ थोड़ा बड़ा भी दिख रहा होगा. क्वेश्चन नंबर 2 नाउ क्या कह रहा है? ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल. एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है. क्वाड्रिलेटरल जानते हो ना, 4 साइड से घिरा हुआ. A, B, C and D, and these two angles are 90 degree. 1 and 2 दिया हुआ है. एंगल 1, एंगल 2
दे आर 90 डिग्री। तो कह रहा है कि इज AD पैरेलल BC। तो पहले जब ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो पहले आपको समझ लेना है कि कैसे होगा, पैरेलल होगा कि नहीं होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो पहले तो मेंटली आपको सोचना पड़ेगा। मेंटली जैसे ही आपका आंसर यानी पैरेलल होगा तो पहला इसका आंसर होगा यस AD इज पैरेलल टू BC। अगर केवल क्वेश्चन इतना कहा जाता तो आप इतना लिख देते, आपको पूरा नंबर देना पड़ जाएगा हमें। इसलिए उसके आगे जोड़ दिया है जस्टिफाई योर आंसर। कैसे? खाली यस कह देने से कैसे होगा सर? तब होगा कैसे? जैसे इस लाइन को आप समझो और ये ट्रांसवर्सल इसको समझ लो, तो क्या देख रहे हो? AD और BC is intersected by a transversal in such a way that sum of its interior angles is 180 degree। ये 90 और 90 मिलके क्या होगा? Here angle DAB और प्लस CBA is 90 plus 90 180, यानी sum of interior angles on the same side of the transversal। यहाँ ट्रांसवर्सल कौन सा है, क्या नाम है ट्रांसवर्सल का? AB है। is 180 degree, they are supplementary, so therefore the lines AD and BC must be parallel। अब ये भी कह सकते हो अगर ये 90 है लेकिन चूंकि लाइन इधर नहीं बढ़ा हुआ था इसलिए हम इधर नहीं ले पा रहे थे, सो इंटीरियर एंगल का कंसेप्ट होगा। लाइन को आप थोड़ा कंस्ट्रक्शन करके बोल दे सर बढ़ा दिया आगे, तो ये 90 तो ये भी 90, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल से काम हो जाएगा। बट चूंकि वी आर डिस्कसिंग अबाउट ओनली क्वाड्रिलेटरल, सो दे आर नॉट एक्सटेंडेड आउटसाइड। ये हमने समझाने के लिए आपको बाहर थोड़ा लाइन खींच दिया कि दिस टू लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाई दिस एज वेल एज दिस। तो ये दोनों इंटीरियर एंगल हुए और ये दोनों भी इंटीरियर एंगल हुए। तो चूंकि इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम 180, 90 प्लस 90 180 हमें मिल गया, तो हम कह सकते हैं कि दिस टू लाइन्स आर पैरेलल एंड दिस इज आवर जस्टिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट जो है वो एक कंस्ट्रक्शन टाइप का क्वेश्चन है, आप करना। यू हैव टू ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास। यू ड्रॉ अ लेंथ 6 सेंटीमीटर। फिर क्या रहा, टेक एनी पॉइंट 2 पॉइंट्स P, एक पॉइंट P ले लो, एक पॉइंट Q ले लो। ड्रा लाइन परपेंडिकुलर। 90 डिग्री बनाना आता है कंपास से? अगर 90 डिग्री बनाना आता है तो यहाँ से एक कोई रेडियस लेके एक आर्क ऐसे ड्रॉ करेंगे, फिर ये होता है 60, फिर ये होता है 120। इस 60 और 120 को यहाँ से आर्क काट करके यहाँ से काट लेते हैं तो ये 90 बनता है। उसी तरह यहाँ भी हम लोग कर लेंगे, एक आर्क लेंगे, फिर सेम उसी रेडियस का इस यहाँ रख कर इस पर कट करेंगे, फिर इस पर कट करेंगे, फिर इन दोनों से रख के ऊपर में यहाँ और इधर से यहाँ कट करेंगे, और ये जो आएगा ये हो जाएगा 90। तो आप प्रोटेक्टर के हेल्प से भी 90 बना लो। व्हाट कैन यू से अबाउट दीज टू लाइन्स? लेबल इट एज PRQS। What can you say about PR and QS? Are they parallel? तो yes, उस पार्ट में are they parallel we can say that yes। and the same question, लाइन के एक ही तरफ के दोनों एंगल का सम कितना है? 90 90 180। तो को इंटीरियर एंगल का सम 80, लाइन मस्ट बी पैरेलल। जस्टिफाई योर आंसर, सेम थिंग लिख देंगे। RP एंगल RPB, ये Q RPQ प्लस SQP इक्वल टू 90 प्लस 90 180, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, सो देयरफॉर लाइन्स आर पैरेलल। सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन ऑफ द वर्कशीट 3। सो आई होप टुडे इज दिस मच ओके। इंजॉय, सीखिए, और मुझे ये समझना है कि ये पहले पढ़ाए गए 5 चैप्टर्स जो हैं, जिसमें एक दिन मैंने इसके जस्ट पहले वाली जो वीडियो है उसमें जो 2020 में जो एनुअल पेपर आया था, जितने क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व कर दिया था। रिवीजन पहला 2 चैप्टर का दिया है हमने। बाकी चूँकि मैंने वीडियो बनाई थी, ठीक ठाक बनाई थी अपने हिसाब से,
तो उसको आप थोड़ा देख लीजिएगा। अगर आप ये लगता है, इफ़ यू फाइंड दैट देयर इज सम डिफिकल्टी इन एनी पार्ट ऑफ द चैप्टर्स व्हाट वी हैव टॉट ऑलरेडी, like variation or profit loss and discount or algebraic identities, whatever, you can ask ki sir please one more time give me, but you have to give me some times, है ना। This video we are in the 27th April of the month, so round about 1 month होने जा रहे हैं पढ़ाई के, और वी आर इन द 6th chapter. I taught you sixth one, but whether you have learnt all or not I don't know. So there will be some test I will give you, and I hope at home you do some honesty, giving whenever you give your test you do some honesty. ईमानदारी से जितना आप करोगे उतना अच्छा आपके लिए होगा, क्योंकि ये टेस्ट का कहीं नंबर तो ऐड होना नहीं है, ठीक है ना। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।